Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are well and safe. Today we are going to read our another topic of the chapter number 2. What's that? Food, health and hygiene. Okay, dear, we have read about the different components of food that are called nutrients, and the different components of food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water, and roughage. Okay, these are the different components of food. Now we are going to read about balanced diet. First of all, let me tell you what's diet. Diet means the food that we eat regularly. That's called diet. That's called diet. जो हम food खाते हैं ना रोज़, whatever we eat in breakfast, dinner, lunch, whatever we eat, that's called diet. That's called diet. And this food is rich in different types of nutrients, and we have read that. है ना, हमने वो पढ़ा. इस फूड जो फूड हम खाते हैं, द फूड दैट वी ईट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Different type of nutrients. Some contains carbohydrates, some contains fats, some contains proteins, some contains vitamins, some contains minerals. Okay, so we need these nutrients in right amount. We need these nutrients in right amount. Okay, so to keep ourselves healthy, we need these nutrients. We need the balanced diet. And what is this balanced diet known as? ये balanced diet क्या होता है? Balanced diet is a diet that includes all the nutrients required for the body in the adequate amount. That's called a balanced diet. A diet in which there are all the nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals in right amount. इन राइट, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, बराबर जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना होना चाहिए. दैट्स कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. Okay, if we will not get these nutrients properly, if we will not get these enough nutrients, what will happen? Our body will not function properly. It will not फंक्शन इफेक्ट, ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, ना ही ये डिजीज़ से लड़ सकती है. एंड वी मे फॉल इल, हम बीमार पड़ सकते हैं. दिस इज़ द बैलेंस्ड डाइट chart I have shown here. That's it contains all the foods, like the foods that are rich in carbohydrates, the foods that are rich in fats, foods rich in vitamins, foods rich in proteins. Okay, this is shown here that we should eat this much of food, this type of food, to keep ourselves healthy. Okay, so this was about the balanced diet. Now is in our book, that's regular exercise. What does this regular exercise do? Regular exercise keeps our muscles, bones strong. It strengthens our muscles. हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं ये उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है एक्सरसाइज करने से. वरना हम वी विल फील डलनेस, हम लेज़ी हो जाएंगे इफ़ वी विल नॉट डू एक्सरसाइज. एंड ऑल्सो दिस एक्सरसाइज हेल्प्स कीप आवर हार्ट हेल्दी. हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है. हमारा जो फोकस होता है व्हेन वी आर लर्निंग, कि दिस एक्सरसाइज कीप्स अस अलर्ट एंड फोकस्ड. ओके, इट कीप्स आवर एनर्जी लेवल, ये हमारी एनर्जी लेवल बरकरार रखती है. कौन? एक्सरसाइज. इट इम्प्रूव्स आवर ब्रेन फंक्शन. हमारे ब्रेन में जो फंक्शंस होते हैं, जो मतलब हमारा जो ब्रेन है उसको प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करती है एक्सरसाइज. ठीक है. It helps to spark a breakthrough idea. मतलब हमारे माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ को क्या वो बोलते हैं, मतलब उसको उभारती है. ठीक है, एक्सरसाइज करने से. ठीक है. इट आल्सो कीप्स आवर ऑप्टिकल वर्क लाइफ बैलेंस. हमारी लाइफ में को बैलेंस करने में भी एक्सरसाइज हेल्प करती है. ठीक है. एंड आल्सो टू वर्क थ्रू अगर हमारे मतलब हम काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, दिस एक्सरसाइज हेल्प्स हाउ टू लर्न in discomfort. Okay, this, so we need to
एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए. व्हाट द फंक्शंस दैट आर हैपन्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, लाइक देयर इज ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट इज इट. सो दीज ऑल these things are done properly by means of exercise. Okay, now what we have to do, what does this exercise do? It increase our stamina, it keeps us fit and healthy. ये हमें फिट हेल्दी बनाती है, ठीक है. एंड इट शार्पन्स आवर माइंड, इट शार्पनेस आवर थिंकिंग, it gives us more energy, it makes us energetic. What? Exercise. It keeps our muscles and bones strong. Okay, now is the another topic here, that's rest. Why we should take rest? Why we should take rest? Along with exercise we must take rest. Rest is also important. We should not work all the day. हमें पूरा दिन सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए, पूरा दिन एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहिए. दैट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है. वी शुड एक्सरसाइज बट वी शुड टेक रेस्ट एज वेल. एक्सरसाइज के साथ साथ हमें रेस्ट भी करना है. व्हाट डज दिस रेस्ट डू? इट रिलैक्सेस आवर मसल्स, हमारी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है. एंड व्हाट हैपन्स देयर, व्हाट डज स्लीप डू? स्लीप क्या करती है? मतलब स्लीप, जब हम सोते हैं रात को, दैट रिड्यूसेस आवर स्ट्रेस. जो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस होता है काम का या किसी भी चीज़ का, वॉट एवर वी आर डूइंग, जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ होता है, उसकी वजह से हम परेशान होते, स्ट्रेसफुल होते हैं. द स्लीप रिड्यूसेस दैट. Okay, sleep, second point is that it improves our memory. Sleep improves our memory. ये हमें हमारी memory को बढ़ाता है sleep, सोना, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज दैट इट lowers our blood pressure. ब्लड प्रेशर को इसको स्लीप से कम, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स कम हो जाते हैं. क्योंकि स्लीप करने से क्या, रेस्ट मिलता है और हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होता जा रहा है, ठीक है. इट द स्लीप हेल्प्स टू फाइट विद डिजीजेस, हेल्प योर बॉडी टू फाइट बैक. मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीजेज होते हैं, स्लीप हेल्प्स इन दैट. ओके, स्लीप कैन हेल्प यू मेंटेन योर वेट. हमारी बॉडी का जो वेट है, स्लीप ऑल्सो हेल्प्स इन दैट. ओके, ऑल्सो अगर आपका मूड ख़राब होगा तो अगर आप सोओगे, फिर उसके बाद जब आप उठते हो तो आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक हुआ होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्लीप. ओके, डायबिटिक चांसेस जो होते हैं, डायबिटिक चांसेस दैट आर रिड्यूस्ड बाय द स्लीप एज वेल. ओके, इट कीप्स अवर हार्ट हेल्दी. स्लीप से हमारा, सोने से हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है. स्लीप कैन बी अ पेन किलर. कभी कभी स्लीपिंग से मतलब पेन भी दूर होती है, ठीक है. कभी इंसान को सिर दर्द होता है या किसी भी कहीं पे भी दर्द होता है, जोड़े किसी मतलब घुटने में दर्द होता है, तो अगर आप सोओगे तो उससे आप पेन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. स्लीप से हम स्मार्ट भी हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, हमारा स्किन जो है वो हेल्दी रहता है, एंड दैट मेक्स अस स्मार्ट. ओके, नाउ इज़ द पोस्चर. What does this posture means? Posture is the position of the body while sitting, standing, moving or lying down. Posture means हमारे बैठने का तरीका, चाहे हम बैठे हों, चाहे हम खड़े हों, चाहे हम चल रहे हों, चाहे हम सो रहे हों. That is called a posture. That's called the position of our body. And there is a need of correct posture. हमें हमारी बॉडी को करेक्ट पोस्चर की ज़रूरत है, गुड पोस्चर की ज़रूरत है. उससे क्या होता है, उससे हमारी अपीयरेंस जो होती है, मतलब हम कैसे दिख रहे हैं वो भी अच्छी हो जाती है. अगर हम अच्छे से चल रहे हैं, कोई मतलब हम जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा के है, एक बॉय जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है. दूसरा बॉय जो है वो अच्छे से चल रहा है, इट्स अपीयरेंस इज़ वेरी गुड. और कम्युनिकेशन में भी आपका जो पोस्चर है दैट matters. Also whenever you are in a bad posture, उसमें आपके हार्ट में भी
मतलब इफेक्ट पड़ता है, आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है पोस्चर की वजह से। आपके चलने का तरीका कैसा है, आपके बैठने का तरीका, आपके सोने का तरीका कैसा है, दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ। ओके, इफ़ यू हैव अ बैड पोस्चर यू देयर विल बी स्ट्रेन योर मसल्स। आपके बॉडी में, आपके मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है, पेन हो सकती है, नेक पेन हो सकती है। ये किसकी वजह से है? इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से। ओके, एंड व्हाट डज दिस करेक्ट पोस्चर डू? इसमें आपका मूड ठीक हो जाता है। अगर आपका पोस्चर ठीक है, इट इम्प्रूव्स योर मूड, इट इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग, इट इम्प्रूव्स योर टेस्टोस्टेरोन, इट इम्प्रूव्स एंड मेक्स यू स्मॉलर, स्लिमर एंड टालर। इससे आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, ठीक है। इससे आपकी मेमोरी और लर्निंग भी इंक्रीज होती है, एंड इट आल्सो मेक्स टू लुक पावरफुल, it reduces back and neck pain. It is because of this correct posture. Okay, so keep yourself in a good posture. आप खुद को मतलब अपने आप को अगर आप बैठे हो तो अच्छे से बैठो, सो जाओ तो अच्छे से गुड पोस्चर में। ओके, now is the proper hygiene. What does hygiene means? Hygiene is the condition or practice that may helps to maintain health and prevents the spread of diseases through cleanness. ओके, हाइजीन का मतलब है वो कंडीशन और वो प्रैक्टिस जिससे क्या होता है, जिससे हमारा हेल्थ, हमारी सेहत मेंटेन रहती है। किससे? मतलब डिजीज़ दूर रहते हैं, स्पेशली किससे? बाय क्लीननेस, बाय क्लीनिंग आवर सेल्व्स, दैट्स कॉल्ड हाइजीन। That's called hygiene. Means we should bath every day, we should wash hands before and after meal. This is cleanness. If we are going in a toilet, after coming from toilet we should wash hands. We should use clean clean vegetables, clean fruits, fresh vegetables, fresh fruits. We should यूज़ फ्रेश फूड। ओके, हमें क्या, हमारे इर्द गिर्द जो हमारी सराउंडिंग्स है, वी शुड कीप दैट क्लीन, दैट टू कीप दैट क्लीन आवर हेल्थ विल रिमेन गुड, आवर हेल्थ विल बी मेंटेन्ड इन अ गुड कंडीशन। ओके, what are the different good hygienic habits that we should teach, we should follow? First, whenever we get up we should brush our teeth. Is this good habit? Yes. After that we should bath. After that we should comb our hair. Okay, and keep your all the body parts, keep that clean. Your foot, your arms, your hands, your face, whatever, all the body parts you should keep that clean. You should keep toileting hygiene. मीन्स अगर आप टॉयलेट जा रहे हो तो वहाँ पे हाइजीनिक क्लीननेस होनी चाहिए, हैंड हाइजीनिक होनी चाहिए। whenever you sneeze or cough you should use handkerchief. ओके, बाकी जो ये है ईटिंग हैबिट्स में, उसमें भी आपको क्लीननेस लानी चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। वी शुड ईट बैलेंस्ड फूड, वी शुड ईट हेल्दी दिस फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स। ओके, दैट कीप्स आवर बॉडी गुड एंड मेंटेन आवर गुड हेल्थ. So this was about the balanced diet, exercise, rest, posture and proper hygiene. Hope you got it. Fi amanillah. Take care.